بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ سندھ حکومت کی پیشکش رنگ لے آئی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے پیشکش کو قبول کرتے ہوئے 3 روز سے جاری ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سندھ حکومت اور فلور ملز ایسوسی ایشن کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ اشرف، بتائیے گا۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خوشخبری کہ 3 روز سے جو فلور مل کی ہڑتال تھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایک تحریری معاہدہ ہوا جو تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، جس میں 5 لاکھ جو ہے گندم کی بوریاں پاسکو سے دی جائیں گی۔ ساتھ ہی جو سندھ سمیت پنجاب اور یہاں سے بھی گندم لانے کی اجازت ہوگی 15 مئی سے۔ یہاں پہ جانتے ہیں فلور مل ایسوسی ایشن چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، کیا فیصلہ ہوا ہے؟ اتنی طویل مذاکرات ہوئے ہیں، وجوہات کیا تھی؟ دیکھیں، وجوہات جو تھیں وہ آج آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ایک ہی ہمارا مطالبہ تھا کہ گندم انٹیریئر سندھ میں سستی ہے، کراچی میں مہنگی کیوں ہے بھائی، اور کیا وجوہات ہیں اس کی؟ کیوں آپ نے چیک پوسٹیں لگائی ہیں جب سیزن میں گندم بھی بھرپور ہے، بمپر کراپ بھی ہے؟ کچھ بہرحال مسائل تھے حکومت کے جو ان کو سمجھ میں آ گئے ہیں، انہوں نے ایڈریس کر لیا ہے اس کو، لیکن لیٹ کیا ہے کافی، لیکن بہرحال دیر آئے درست ہے۔ آج ڈائریکٹر فوڈ خود یہاں موجود تھے اور انہوں نے کچھ چیزوں کو ایڈمٹ کیا ہے، اور سندھ سے ہماری گندم کھل جائے گی 1 ہفتے کے بعد، یعنی 15 مئی کو، اور اس کے بیچ میں جو 5-6 دن ہے 5 لاکھ بوری ہمیں کراچی سے ایشو ہو جائے گی، اور ہمارا کام اب مجھے امید ہے کہ کنٹینیوٹی میں چلے گا، دوبارہ ایسے مسائل نہیں آئیں گے، اور آٹے کی قیمت بھی مارکیٹ میں انشاءاللہ کم ہوگی۔ اچھا عامر صاحب، یہ پہلی بار ہوا ہے تاریخ میں کہ ایک معاہدہ ہوا ہے جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ بات ہوتی تھی زبانی، لیکن اس دفعہ آپ لوگ ڈٹ گئے تھے کہ معاہدہ ہوگا تبھی آگے بڑھیں گے۔ معاہدے کے چند نکات کچھ چینجنگ بھی ہوئی تھی تاریخ میں، اس کے بعد 15 مئی آئی، تو کیا کہیں گے کہ ایگریمنٹ کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ کس تاریخ کو نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا اوپن کرنے کے؟ دیکھیں، کام کرنے کے سندھ حکومت کی پیشکش رنگ لے آئی ہے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے 3 روز سے جاری ہڑتال کو ختم کر دیا ہے۔ سندھ حکومت اور فلور ملز ایسوسی ایشن کے درمیان معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے۔ معاہدہ جو ہے فلور ملز ایسوسی ایشن اور سندھ حکومت کے درمیان طے پا گیا ہے۔ سندھ حکومت کی پیشکش جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، اور 3 دن سے جو ہے ہڑتال کی جا رہی تھی فلور ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے، جو اب ختم کر دی گئی ہے، اور ایک معاہدہ جو ہے سندھ حکومت اور فلور ملز ایسوسی ایشن کے درمیان طے پا گیا ہے۔ اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سندھ حکومت کی پیشکش جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، فلور ملز ایسوسی ایشن نے پیشکش کو قبول کر لیا۔ سیزن میں عوام سستے آٹے کو سرائیں گے اور اس کو سہولت ہوگی ان کے لیے۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا، یہاں پہ تمام جو پوائنٹس ہیں وہ حتمی فیصلہ ہو گیا۔ 5 لاکھ جو گندم کی بوریاں کراچی سے سپلائی کی جائے گی۔ 15 مئی سے سندھ اور پنجاب سے بھی گندم لانے کی اجازت مل جائے گی۔ 12 مئی کو اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، اور ساتھ میں کہا ہے کہ جب تک پنجاب سے اسے گندم نہیں آئے گی تو یہاں سے جو پاسکو سے گندم ملے گی وہ 128 روپے فی کلو گندم ملے گی۔ جی بہت شکریہ اشرف خان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان گندم پر تنازع آٹے کی قلت کا سبب بننے لگا۔ شہری کہتے ہیں کسی کو عوام کا خیال نہیں، آٹا نہیں مل رہا، مل بھی جائے تو مہنگا ہونے کی وجہ سے خریدنا مشکل ہے۔ تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ کراچی کے شہری آٹے کے لیے رل گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں قائم 92 فلور ملز بند ہونے سے آٹے کی تیاری کا عمل رک گیا۔ شہر میں آٹے کی قلت بڑھتی جا رہی ہے۔ آٹے کی تلاش میں شہری پریشان ہو گئے۔ شہریوں کے مطابق منافع خوروں نے آٹے کی من مانی قیمتوں پر فروخت شروع کر دی ہے۔ آٹا بہت مہنگا ہو گیا ہے، کہیں نہیں مل رہا، بہت تلاش کیا ہے، ہر جگہ پہ سلاسب بھی ہر جگہ کر رہے ہیں، آٹے کا بندوبست کہیں مل رہا نہیں ہے۔ گندم موجود نہیں ہے اور مل والے اسٹرائک پہ گئے ہوئے ہیں، تو جب گندم آئے گی نہیں، آٹا پیسے گا نہیں تو ملے گا کیسے؟ ہم لوگ مزدور آدمی ہیں، جتنے دیہڑی ملتی ہے وہ یہ کھانے پینے پہ چلے جاتے ہیں۔ آٹے کا شمار روزمرہ استعمال کی اہم ترین شے میں ہوتا ہے۔ سندھ حکومت اور فلور ملز ایسوسی ایشن کے درمیان گندم کا تنازع حل ہونے سے ہی شہریوں کے لیے آٹے کا حصول آسان ہو سکتا ہے۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21۔ شہر قائد میں فلور ملز بند ہوئے 3 روز ہو گئے، یوٹیلیٹی سٹور سے بھی آٹا غائب ہو گیا۔ صورتحال سے شہری پریشان ہو گئے ہیں۔ تفصیلات رابیل اشرف کی اس رپورٹ میں۔
हुकूमत और फ्लोर मिल्स की लड़ाई में शहरी पिसने लगे। कराची में 92 फ्लोर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद होने से आटे के शदीद बहरान का खदशा पैदा हो गया। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा नायाब हो गया। शहरियों का कहना है कि गरीबों के लिए मार्केट से आटा खरीदना पहले ही मुश्किल था। अब यूटिलिटी शहरियों ने हुकूमत से अपील की कि आटे की फरहमी यकीनी बनाई जाए। आटा तो मिल ही नहीं रहा है, ना महंगा मिल रहा है ना सस्ता मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है आटा तो, और इतना परेशान हो रहे हैं, पूरा इलाका परेशान है इस वजह से, आटे की वजह से। हुकूमत से यही अपील करेंगे कि आटा तो दें, कम से कम आटा तो एक सबके घर की ज़रूरत है, किसके घर पे आटा नहीं होगा वो क्या करेगा। फ्लोर मिल्स बंद होने से यूटिलिटी स्टोर का अमला भी परेशान हो गया है। कैमरामैन गुलफाम के साथ राबिल अशरफ, सिटी 21। दाल भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। होलसेल की सतह पर दालों और चने की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दालों की कीमतों में इजाफे की वजूहात जानते हैं वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। दर पे वार अवाम का जीना दुश्वार। मार्केट में दालों और चने की कीमतें बढ़ गईं। होलसेल की सतह पर दाल चना 15 रुपए इजाफे से 220 रुपए किलो पर पहुंच गई। मसूर की दाल 10 रुपए महंगी होकर 255 रुपए की हो गई। माश की दाल 20 रुपए इजाफे से 430 रुपए किलो तक पहुंच गई। चने 325 रुपए किलो से बढ़कर 390 रुपए तक पहुंच गए। दुकानदारों ने दालों की कीमतों में इजाफे की वजह डॉलर की कदर में अदम इस्तेहकाम और एलसीज खुलने में दरपेश मुश्किलात को करार दे दिया। एलसी का प्रॉब्लम है, जब तक कंप्लीट एलसी नहीं खुलेगी तब तक ये सिलसिला यूं ही रहेगा। 15 रुपए दाल चने पे इजाफा हो गया है, 20 रुपए काले चने पे, और सफ़ेद चने पे भी 15 से 20 रुपए हो गए हैं इजाफे। शहरियों का कहना है कि महंगाई के अवामिल कुछ भी हों, मौजूदा वक्त में दाल रोटी का हुसूल इम्तिहान से कम नहीं। कीमतों में तो बहुत इजाफा हो गया, अब क्या करें, जो है वो करना पड़ता है, मजबूरी है, घर को चलाना है और इन चीज़ों को भी देखना है। बहुत महंगे तो बहुत और में चली गई है। 500 रुपये किलो एक दाल है। अब गरीब बंदा क्या खाएगा और क्या करेगा। चिकन तो सोचना दूर की बात हो गई है ना, उसको तो आप ख्वाब में भी नहीं खा सकते। हर गुजरते दिन के साथ अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा शहरियों के माली मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रहा है। कैमरामैन वक्कास लोधी के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर काइद समेत सिंध के 26 अजला में कल दंगल सजेगा। कराची की यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की 11 और वार्ड मेंबर की 15 नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी। पोलिंग सुबह 8 से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस खाली कराची की जिला बस्ती की 3 काउंसिल पर यूसी चेयरमैन के इंतखाबात होंगे, जिसमें यूसी 4 न्यू कराची, यूसी 6 नॉर्थ नाजिमाबाद और यूसी 13 न्यू कराची शामिल है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की भी 3 यूनियन काउंसिल पर इलेक्शन होंगे, जिसमें यूसी 2 कोरंगी, यूसी 3 शाह फैसल और यूसी 8 लांडी शामिल हैं। इसी तरह जिला गरबी की भी 3 यूसी औरंगी टाउन, यूसी 1 और 2 और यूसी 8 मोमिनाबाद में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। जिला जुनूबी और किमाड़ी की एक यूसी पर भी मुकाबला होगा। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल आज मुकम्मल किया जाएगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। 302 पोलिंग स्टेशन पर 2750 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। शहर में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स के 476 एहलकार शामिल होंगे। 1900 के करीब पुलिस एहलकार रिजर्व पुलिस के तौर पर अलर्ट रहेंगे। इलेक्शन कमीशन दफातर पर 271 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। मजमूई तौर पर शहर भर में 6707 पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर फराइज निभाएंगे। शहर भर में 168 हसास तरीन और 134 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी बल्दियाती इंतखाबात की सिक्योरिटी मुकम्मल कर ली गई। एसएसपी मारूफ उस्मान के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में टोटल 80 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिनमें 26 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास हैं और 54 पोलिंग स्टेशंस हसास हैं। 852 से ज़ायद एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से, जो इस वक्त मारूफ उस्मान के साथ ही मौजूद हैं। जी अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ एसएसपी सेंट्रल मारूफ उस्मान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कितने एहलकार जो है तैनात किए गए हैं और कितने सेंसिटिव और हाईली सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन है वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कितने सेंसिटिव हैं और कितने पोलिंग स्टेशन हाईली सेंसिटिव हैं जहाँ पर जो है आप लोगों ने डिप्लॉयमेंट की है सिक्योरिटी? ये बेसिकली ज़िला सेंट्रल में 3 यूसीज़ में
इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा है जिसमें 31 पोलिंग बिल्डिंग्स हैं और टोटल 80 के लगभग हमारे पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से 26 जो है वो हाईली सेंसिटिव हैं और बाकी जो है वो सेंसिटिव हैं, नॉर्मल कोई भी नहीं है। मोस्ट सेंसिटिव के ऊपर हमने 12 की नफरी लगाई है, 12 अहलकार एक पोलिंग स्टेशन पे होंगे और सेंसिटिव में 10 अहलकार एक पोलिंग स्टेशन पे होंगे। और इसके अलावा हमने पर 2 पोलिंग बिल्डिंग्स के ऊपर एक QRF जिसमें 2 मोबाइलों में 14 अहलकार मौजूद होंगे, 2 वो रखे हैं। इसके अलावा SHOs DSPs की रिजर्व्स में 250 बंदा रखा है और इसके अलावा बाकी जो कुल नफरी हमारी 1500 के लगभग है जो इस टाइम हमने डिप्लॉय की है। ये बताइएगा, हम देखते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में अक्सर जो नाखुशगवार वाक़यात हो जाते हैं इस तरीके से, या 2 पार्टीज आपस में लड़ पड़ती हैं, उसको जो है कंट्रोल करने के लिए आपकी जानिब से क्या हिकमत अमली जो है वो तैयार की गई है? आप क्या ऑन ग्राउंड होंगे इलेक्शन के दौरान? जी बिल्कुल, मैं ऑन ग्राउंड हूँगा। मेरे SPs हैं, मेरे DSPs हैं, SHOs तमाम ऑन ग्राउंड होंगे। हमने उनको ये बताया कि जहाँ पे भी इशू जनरेट हो फौरी तौर के ऊपर मौके पे पहुँचें। उसमें जब डिले आ जाता है रिस्पांस में तो वहाँ पे इशू बड़ा हो जाता है। बहुत से इश्यूज़ होते हैं जो आप टाइमली पहुँच के कंट्रोल कर लेते हैं। अगर आप देखें जो हमारा मेन बल्दियाती इलेक्शन हुआ था 15 जनवरी को, अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रल में कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि जहाँ पे किसी को चोट लगी हो या किसी में कोई ऐसी चीज़ हो। तो इसलिए हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि कल का इलेक्शन भी बड़ा पुरअमन तरीके से होगा। जी बिल्कुल, SSP सेंट्रल मारूफ उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 80 पोलिंग स्टेशन जो है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद हैं, 26 जो है हाईली सेंसिटिव हैं और 54 के अराउंड जो है वो सेंसिटिव बताए जा रहे हैं। कोई भी नॉर्मल पोलिंग स्टेशन यहाँ पर नहीं है। QRF फोर्स जो है तैनात की गई है नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए और ख़ुद भी ये ऑन ग्राउंड हो गया और तमाम तर सूरत हाल को देखेंगे। जी, कराची की ज़िला बस्ती में इलेक्शन के सामान की तरसील का अमल इंतज़ामिया ने मुकम्मल कर लिया। इलेक्शन के मौके पर पुलिस की नफरी पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात रहेगी। डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम कहते हैं शहरी निकलें और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। मज़ीद तफ़सीलात जुनैद जावेद की रिपोर्ट में। बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। बल्दियाती इलेक्शन के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। जिला बस्ती में पोलिंग स्टेशंस के सामान की तरसील का अमल सुबह 8 बजे शुरू होकर 2 बजे खत्म हो गया। जिला बस्ती में 3 UCs जबकि पूरे शहर में 11 UCs में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंतखाबात इंतकाल कर जाने वाले उम्मीदवारों की निशिस्तों पर होंगे, जिनमें UC 4, UC 6 और UC 13 शामिल है। जिला बस्ती में पोलिंग के लिए मुख्तलिफ UCs में 80 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां पुलिस की नफरी तैनात रहेगी। जिला बस्ती में UC 4 पर 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, UC 6 पर 10 और UC 13 पर 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम का कहना है कि तमाम पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास हैं। उम्मीद है माहौल खराब नहीं होगा, लोग निकलें और वोट दें। ये हक है हर वोटर का कि वो वोट डाले और ये उसकी नेशनल ड्यूटी है। तो बस यही है कि ज़िमनी इंतखाब में देखा गया है कि टर्न आउट थोड़ा कम होता है, बट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द वोटर्स जिनके यहाँ वोटिंग हो रही है कि वो घर से निकलें और वोट दें, क्योंकि इसी तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो प्रमोट होती है। शहर भर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस और रेंजर्स अलर्ट है। कैमरामैन अजमल खान के साथ जुनैद जावेद, सिटी 21। कराची के इलाके लियारी UC 2 के अवाम ने अपना पसंदीदा उम्मीदवार बता दिया। 37,000 की आबादी वाले UC बहार कॉलोनी में तमाम जमातें कैंप्स लगाकर अपने उम्मीदवार को जितवाने की कोशिशों में मगन है। UC 2 का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हर तरफ लहराते झंडों की बहार। कराची की 11 UCs में ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। मुकाबले के लिए PP, जमात इस्लामी, PTI और TLP ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हर जमात अपना उम्मीदवार जितवाने के लिए कोशा है। पीपल्स पार्टी ने UC 2 से चेयरमैन के लिए अब्दुल कादिर को मैदान में उतारा है। जमात इस्लामी के जवाद शुएब, TLP के अहमद बेग, जबकि PTI के उम्मीदवार ख्वाजा वहीद मद्दे मुकाबिल होंगे। UC 2 बिहार कॉलोनी में टोटल वोटों की तादाद 37,000 है। बिहार कॉलोनी UC 2 के मकीनों ने अपना उम्मीदवार सैयद शुएब को करार दे दिया। साथ ही मेयर कराची के लिए हाफिज नईमुर रहमान की भी सदा लगा दी। रात दिन देख रहे हैं कि जमात इस्लामी के जितने लोग हैं, चाहे रात हो चाहे सुबह हो, दिन गर्मी बारिश धूप, वो इंतहाई मेहनत करते हैं। तो इस दफ़ा हमारा वोट, पूरी फैमिली का वोट, दोस्तों का वोट, सबका जमात इस्लामी को है और इंशाल्लाह मेयर कराची हाफिज नईमुर रहमान। बिहार कॉलोनी में मुख्तलिफ जमातों ने अपने अपने कैंप्स लगा रखे हैं। अब फैसला कल होगा कि कौन सा उम्मीदवार फातेह होता है। कैमरामैन हैदर के साथ जुनैद जावेद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। पीपल्स पार्टी कराची के रहनुमा और मेयर के उम्मीदवार नजमी आलम ने दावा किया है कि ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों में अक्सरियत से कामयाब होंगी। तफसीलात आजिज़ जमाली की इस रिपोर्ट में।
कराची की 11 यूनियन कमेटियों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में तमाम जमातें अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मुतहर्रिक हो गयीं। पीपल्स पार्टी कराची के रहनुमा नजमी आलम कहते हैं कि औरंगी टाउन की 2 यूसीज समेत 6 से 7 यूसीज में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है। हम 6 से 7 में कॉन्फिडेंट हैं, इंशाल्लाह कम से कम 6 या 7 यूसीज हम निकालेंगे। वेस्ट की तीनों जीतेंगे, किमाड़ी की एक है वो जीतेंगे इंशाल्लाह। सेंट्रल से हमें 1 यूसी बहुत उम्मीद है जीतने की। हमें कोरंगी ज़िले से 2 यूसियाँ जीतने की बहुत उम्मीद है और 1 लियारी से। औरंगी टाउन की 2 यूसीज पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का कहना है कि यूसीज में कामयाबी के बाद इलाके में तरक्याती काम कराए जाएंगे। औरंगी टाउन के बहुत बुरे हाल हैं। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी औरंगी टाउन से नहीं जीती है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने औरंगी टाउन में बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसकी बुनियाद में लोगों ने वोट दिया है। आवाम को ये बात पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके मसले का हल है। मैं चाहता हूँ औरंगी का जो बुनियादी मसला है पानी का वो मैं हल करूँगा और जो मसाइल है औरंगी के गरीबों का मैं हल करूँगा। इतवार को होने वाले दंगल में सियासी जमातें अपनी अपनी कामयाबी के दावे कर रही हैं। देखना यह है कि मेला कौन लूटता है। कैमरामैन जान शेर बलोच के हमरा आजिज जमाली, सिटी 21। पीपल्स पार्टी ने 11 यूसीज के इलेक्शन में अक्सरियत मिलने का दावा कर दिया। सूबाई वज़ीर मेहनत सईद गनी कहते हैं कि रवा माह मेयर्स और चेयरमैनों का इंतखाब होना चाहिए। तफसीलात आजिज जमाली की रिपोर्ट में। इलेक्शन में कामयाबी के लिए पीपी पुर अज़म। सिंध असेंबली के कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सईद गनी बोले, जनवरी के बल्दियाती इंतखाबात की तरह कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी अपनी अक्सरियत साबित करेगी। इलेक्शन कमीशन रवां माह के आखिर तक पहले मखसूस नशिस्तों का ऐलान करे, उसके बाद चेयरमैनों मेयर्स का इंतखाब कराया जाए। हम उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जिस तरह 15 जनवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सूरत में सामने आई थी और 11 नशिस्तों में से अक्सरियत जो नशिस्तें हैं उनकी वो पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला उसमें कामयाबी हासिल करेगी। सईद गनी ने कहा कि मुल्क में सियासी बहरानों के जिम्मेदारों का एहतसाब जरूरी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना था कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत में बैठकर कश्मीर पर जानदार मौक़िफ़ इख्तियार किया, लेकिन भारतीय फंडिंग पर चलने वाली पीटीआई को परेशानी है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। एमकेएम के साबिक रुकन सूबाई असम्बली सैयद हफीजुद्दीन कहते हैं कि 7वीं मरदमशुमारी के अब तक के जारी करदा नताइज से मुतमईन नहीं है। हम खुद को गिनवाने की सलाहियत रखते हैं। मरदमशुमारी के जरिए कराची की आबादी को लापता करने की भोंडी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उन्हीं के साथ मौजूद है। मज़ीद उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, मरदमशुमारी से मुतालिक जो है मुख्तलिफ़ जमातों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी शहर में जारी मरदमशुमारी से जो है मुतमईन हमें नहीं दिखाई देती है। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक रुकन सूबाई असम्बली और रुकन राब्ता कमेटी सैयद हफीजुद्दीन। हम इनसे पूछेंगे कि अब तक जो मरदमशुमारी के नताइज सामने आए हैं, क्या एमक्यूएम मुतमईन है इससे? देखिए, ईमानदाराना बात यह है, मुतमईन तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो मुतमईन नहीं करना चाहते हैं वो हमें मजबूरों मुतमईन करें। हम हक़ और सदाकत की बात कर रहे हैं, अपने को गिनवाने की बात कर रहे हैं। अगर कोई हमें गिन नहीं सकता तो उसको ये काम करने का इख्तियार नहीं है, हमें गिनवाना आता है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप समझ लीजिए कि एमक्यूएम कराची के लोगों को गिनवाने की सलाहियत रखती है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि एमक्यूएम दुरुस्त मरदमशुमारी करवाने की सलाहियत रखती है। अगर मरदमशुमारी दुरुस्त होगी तो शहर के वसाइल में इजाफा होगा। जी महकमे निकासी और फराहमी आब कॉरपोरेशन में तब्दील करने का फैसला सिंध काबीना से मंजूरी के बाद मुसव्विदा स्टैंडिंग कमेटी को इरसाल, जिसे 1 हफ्ते में असम्बली से पास करवा के नए कानून को लागू कर दिया जाएगा। सिंध काबीना से मंजूरी के बाद मुसव्विदा स्टैंडिंग कमेटी को इरसाल किया गया, जिसे 1 हफ्ते में असम्बली से पास करवा के नए कानून को लागू कर दिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। एहसन बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये 3 माह कबल जो है उस दिन काबीना ने बिल पास किया था महकमा नकासी और फराहमी आब के हवाले से कॉर्पोरेशन बनाने के लिए। वो जो मुसव्वदा तैयार किया गया था, मंजूरी के बाद स्टैंडिंग कमेटी को जो है
वो अरसाल कर दिया गया है। स्टैंडिंग कमेटी अब 1 हफ्ते के अंदर उसको पास करेगी और पास करने के बाद जो है वो असेंबली से कानून पास होने के बाद वो कानून लागू हो जाएगा। जो नया कानून होगा उसके मुताबिक कोई भी शहर भर में गैर कानूनी तरीके से पानी चोरी में मुलव्वस मिलता है तो उस पर जुर्माना होगा, उस पर सजा आयद होगी। नए मीटर्स जो हैं वो नस्ब किए जाएंगे। फुजला जो फैक्ट्री का फुजला है वो सीवरेज की लाइनों में नहीं छोड़ा जा सकता, उसके हवाले से भी इस कानून में जो है वो फिक्र रखी गई है। वो तमाम फुजला भी जो है वो इन सीवरेज की लाइनों में जो है वो छोड़ना अलाउ किया जाएगा। साथ साथ गैर कानूनी तमाम शहर भर में चलने वाले हाइड्रेंट जिन प्रॉपर्टीज पे चलेंगे उन प्रॉपर्टीज को सील किया जाएगा। थाने के कयाम के हवाले से भी इसमें जो है वो बात की गई है ताकि कानून पास होने के बाद जो है KWSB को जिस तरह कराची इलेक्ट्रिक सुई गैस के महकमों को अलग से थाना दिया गया है, इस तरह से KWSB का अलग एक थाना होगा। साथ साथ वो नए मीटर जो नस्ब किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के मीटर्स होंगे जिसमें पानी चोरी के हवाले से जो सनती एरिया में एक बहुत बड़ी शिकायत है, फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में पानी की एक बहुत बड़ी चोरी होती है जिससे रेवेन्यू जनरेशन में इदारे को नुकसान होता है, उसके हवाले से भी जो है वो नई हिकमत अमली तैयार की गई है। कानून पास होने के बाद वो लागू होगी। साथ साथ वो जो सीवरेज की लाइनें हों चाहे मीठे पानी की लाइनें हों, अगर उसको किसी भी मकाम पे जो है वो तोड़ा गया तो उसमें भी जो है वो 50 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की जो है वो कैद होगी। ये तकरीबन 1 हफ्ते में जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें कानूनी दावपेच मुकम्मल करने के बाद जो है असेंबली में देगी और असेंबली में अरकान की अक्सरियत से जो है इस कानून को पास करने के बाद जो है वो 1 हफ्ते में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक कानून लागू नहीं होता, बिल पास नहीं होता, तो महकमे में चलने वाला बोर्ड होता है उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन देखा ये जा रहा है कि जो इदारा नकाती फराहमी आपका बोर्ड था जो अहम फैसले करता था उस बोर्ड को पहले ही जो है वो खत्म कर दिया गया है। इस कानून के पास होने के बाद बताया जा रहा है कि चेयरमैन जो है वो MD को हिदायत देंगे और वजीर आला सिंह जो है वो तमाम डायरेक्टली इन तमाम महकमे के मामला को डील करेंगे कॉर्पोरेशन होने के बाद। जी बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी। बुलेटिन में अब आपको बताएं कि मैट्रिक बोर्ड के तहत 8 मई से शुरू होने वाले सालाना इम्तिहानात के एडमिट कार्ड का हुसूल तलबा के लिए मुश्किल हो गया। बोर्ड ऑफिस पर तलबा की लंबी कतारें लग गई जबकि रिश्वतखोर भी सरगर्म हो गए हैं। जवाद आसिफ की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तहानात के लिए एडमिट कार्ड वसूल करने का आखिरी दिन। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में तालिब इल्मों का रश लग गया। तलबा सख्त गर्मी में एडमिट कार्ड के हसूल के लिए लंबी कतारों में खड़े इंतजार करने पर मजबूर हैं। मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तहानात का आगाज 8 मई से हो रहा है, लेकिन तलबा अब तक इम्तहानात में बैठने का परवाना मिलने के मुंतजिर हैं। तलबा के साथ उनके वालिदैन भी मौजूद हैं, जिनका कहना है कि कई घंटों से यहाँ मौजूद हैं लेकिन ऑफिस में मुतल्लिका अफसर मौजूद नहीं। बच्ची का एडमिट कार्ड लेने के लिए आए और अभी जाके ये गवर्नमेंट स्कूल में जाके हमारा 1 बजे तक का टाइम है, उधर जाके स्टैम्प भी लगवानी है और पीर को पेपर है, अभी तक कुछ पता नहीं है। सुबह से आए हुए, कभी नीचे चक्कर काट रहे हैं, कभी ऊपर एक के पास जाओ कह रहे दूसरे के पास जाओ, उसके पास जाओ कह रहे इसके पास जाओ, कोई तमीज़ से बात ही नहीं कर रहे, ऊपर नीचे सुबह से चक्कर काट रहे हैं। प्राइवेट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं इनको, फिर भी जो ना घर पर नहीं भेजते एडमिट कार्ड। तालिब इल्मों की इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए रिश्वतखोर माफिया भी सरगर्म हो गया, जो तलबा से एक एडमिट कार्ड के बदले 600 रुपए वसूल कर रहा था। तलबा के एहतजाज पर पुलिस ने रिश्वतखोर को हिरासत में ले लिया। मैट्रिक बोर्ड ने दावा किया था कि 3 मई तक तमाम उम्मीदवारों के पतों पर एडमिट कार्ड अरसाल कर दिए जाएंगे, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। कैमरामैन हैदर अली के हमरा मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। कराची समेत सिंध भर में 8 मई से शुरू होने वाले मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कराची से 3,93,264 तलबा शिरकत करेंगे। तफसीलात सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के चेयरमैन सैयद शरफ अली शाह कहते हैं कि आबादी में इजाफे के बायस गुज़िश्ता साल की निस्बत रवा साल कराची में 48,000 तलबा की इनरोलमेंट में इजाफा हुआ है। इम्तिहानात से एक दिन कबल 8,000 फॉर्म जमा हुए हैं। इस साल हमारे पास तलबा की तादाद जो है वो गुज़िश्ता साल के निस्बत 43,000 बढ़ी है कराची में। सैयद शरफ अली शाह के मुताबिक कैदी तलबा भी मैट्रिक के इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर पर्चा 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 9 मिनट पहले अगर आप आउट के हिलते हैं तो वो बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि हम आधा घंटा पहले
वो पर्चा सेंटर में पहुंचा देते हैं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का कहना है कि कॉपी कल्चर को रोकने के लिए इम्तहानी मराकज के अंदर और बाहर सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें दुरुस्त नहीं। अगर पर्चा 20 मिनट पहले आउट होता है तो बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं। हम आधा घंटा पहले इम्तहानी मराकज में पर्चा भेजते हैं। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। मैट्रिक के इम्तहानी मराकज़ इलाकों से दूर बनाने पर तुलबा में तशवीश बढ़ने लगी। एक ही दिन में 5 इम्तहानी मराकज़ तब्दील कर दिए गए। लांडी टाउन के 5 इम्तहानी मराकज़ तब्दील कर दिए गए। कोरंगी के स्कूलों का इम्तहानी मराकज़ महज कॉलोनी में बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक निजी स्कूलों ने भारी पैसों के इवज़ अपने स्कूलों में इम्तहानी मराकज़ बनवाए हैं। वालिदैन कहते हैं कि कंट्रोलर इम्तहानात को लड़कियों के सेंटर करीबी इलाकों में बनाने चाहिए थे। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पीटीआई की अदलिया से यकजहती के लिए शाहराह फैसल से निकलने वाली रैली नुमाइश चौरंगी पर इख्तिताम पसीर हो गई। पीटीआई की एमएनए मलिका बुखारी कहती हैं कि अगर 14 मई को पंजाब में इंतखाबात ना हुए तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू हो जाएगी। तफसीलात जानते हैं आजीज जमाली से। देखिए, पीटीआई की जानिब से आज मुल्क भर में अदलिया से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। यहाँ कराची की रैली जो थी शाहराह फैसल इंसाफ हाउस से नुमाइश चौरंगी तक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। इस रैली में पीटीआई की मरकज़ी रहनुमा साबिका एमएनए मलाइका बुखारी भी मौजूद हैं, तो हम थोड़ा सा इनसे गुफ्तगू भी कर लेते हैं। रैलियाँ तो आज पूरे मुल्क में की गई हैं। टारगेट क्या है, होना क्या है? देखिए, एक वाज़े पैगाम देना है आइन शिकनों को, बरसरे इक़्तिदार नशे में चूर हुक्मरान वक्त को, कि आइन की पामाली पाकिस्तान के बाशऊर शहरियों को काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान के बाशऊर शहरी, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, बिलखुसूसन हमारे नौजवान चीफ जस्टिस को वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि आप मुहाफ़िज़ आइन बनकर मंजर आम पर आए हैं, डट जाइए। आइन के मुहाफ़िज़ बनकर डट जाइए, अपने आइन की बालादस्ती के लिए डट जाइए। पाकिस्तान की आवाम आपके साथ, इसके अंदर शाना बशाना है। 14 मई को इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या होना है? 14 मई को इलेक्शन नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक का आगाज़ तो हो चुका है। पाकिस्तानी शहरी अपने चीफ जस्टिस के अहकामात का, उसके तहरीरनामे को अमल दरामद कराना चाहते हैं। एक पुरअमन तहरीक का आगाज़ होगा। इस मुल्क के अंदर एक डिफाइनिंग तारीखी मोमेंट है। अगर पाकिस्तान की आला अदालत के तहरीरनामे को नहीं मानते तो फिर पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून है, पाकिस्तान के अंदर आइन नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है। तो आला अदालत के चीफ जस्टिस को तहरीरनामे को अमल दरामद कराना हर पाकिस्तानी शहरी का कौमी फरीज़ा है। सुना आपने मलिका बुखारी को कि 14 मई को, अगर 14 मई को कह रही हैं इंतखाब नहीं हुए तो पुरअमन तहरीक शुरू होगी। जी, पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली फ़हीम खान घंटी की तलाश में गवर्नर हाउस पहुंच गए, मगर उन्हें घंटी नहीं मिली। फ़हीम खान कहते हैं कि हुकूमत ने अवाम का घंटा बचा दिया। तफसीलात आजीज जमाली की रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस में घंटी की तलाश। तहरीक इंसाफ के फ़हीम खान पहुंचे गवर्नर हाउस के दरवाजे पर और अमले से कहा कि मुझे वो घंटी दिखाएं जिसका ऐलान हुआ था। गवर्नर हाउस का अमला कहता है कि अभी तक गवर्नर हाउस में घंटी नहीं लगी। कराची की गिनती पूरी नहीं हो रही, यहाँ गैस के बिल 500 रुपये बढ़ा दिए गए। गवर्नर साहब वफाक के नुमाइंदे में पूछना चाह रहा हूँ कि किधर है वो घंटी, मुझे घंटी बजानी है। गवर्नर हाउस के मरकजी दरवाजे पर गुफ्तगू करते हुए फ़हीम खान बोले कि गवर्नर खुद तो मौजूद नहीं, गैस के बिल्स में 100% इजाफा हो गया है। हुकूमत ने अवाम का घंटा बजा दिया है। मैं गवर्नर हाउस आया, इनके अमले ने कहा घंटी लगी भी नहीं है। गवर्नर साहब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। गवर्नर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल तो आप लोगों ने अवाम का घंटा बजाया हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने गवर्नर हाउस के बाहर अवामी मसाइल के हल के लिए घंटी लगाने का ऐलान किया था। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के बाद सिगरेट्स की फरोख्त में कमी होने पर एफबीआर की टैक्स वसूली कम हो गई। ज़राए एफबीआर के मुताबिक रवां बरस अप्रैल में 4 अरब रुपए हदफ के मुकाबले 1 अरब 20 करोड़ रुपए टैक्स ही इकट्ठा हो सका। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से फरोख्त घट गई। एफबीआर की टैक्स वसूली भी कम हो गई। ज़राए के मुताबिक अप्रैल 2023 में एफबीआर को सिगरेट पर एफईडी की वसूली का हदफ हासिल नहीं हो सका। हदफ के मुकाबले सिर्फ 20% ही टैक्स इकट्ठा हुआ। टैक्स वसूली 4 अरब रुपए हदफ के मुकाबले सिर्फ 1 अरब 20 करोड़ रुपए रही। सिगरेट्स पर एफईडी में इजाफे का मकसद इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करना था, लेकिन ज़राए बताते हैं कि एफईडी बढ़ाने की वजह से फरोख्त में नुमाया कमी और स्मगलिंग में इजाफा हुआ। अप्रैल 2023 में रजिस्टर्ड सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग ने 16 लाख सिगरेट की स्टिक्स बनाई।
जो गुज़िश्ता साल अप्रैल में 1 करोड़ थीं। टैक्स माहिरीन कहते हैं कि रुपए की कदर में नुमाया कमी और पैदावारी लागत बढ़ने से सिगरेट की कीमत बढ़ी। साथ ही मिनी बजट समेत सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 200% इजाफा किया गया। ज़राए के मुताबिक सिगरेट पर FED बढ़ाने से कीमतों में 250% से जायद का इजाफा हुआ और मुकामी सिगरेट महंगी होने से स्मगलिंग सिगरेट की तलब बढ़ गई है, जो कौमी खजाने के लिए नुकसानदेह है। मुकामी महंगी सिगरेट की फरोख्त में कमी और स्मगलिंग से कौमी खजाने को 6 माह में अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। अशरफ खान, सिटी 21। नाज़रीन, पसंद की शादी करने वाले प्रेमी जोड़ा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिटी कोर्ट पहुंच गया। जोड़ी ने बताया कि 27 अप्रैल को शादी हुई थी, लेकिन अब रिश्तेदारों से खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पसंद की शादी जुर्म बन गई, जान खतरे में आई तो प्रेमी जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत पहुंच गया। खैरपुर के साजिद अली और राबिया ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में बताया गया कि राबिया के रिश्तेदारों से जान का खतरा है, अदालत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। हमने 27 अप्रैल को गंबर कोर्ट में शादी की थी। उसके बाद निकाह के फ़ौरन बाद हमें थ्रेट्स इसके भाइयों की तरफ से, जो शाहिद, वकार, शाकिर और उनके अलावा उनके दोस्त, स्पेशली उनके दोस्त, तो बहुत थ्रेट्स हैं दिन रात। मतलब तो कहने की बात ये है कि अगर उनकी वजह से हमें कोई भी तकलीफ़, कोई भी नुकसान मुझे या मेरी वाइफ को पहुंचा तो उसके ज़िम्मेदार कम्प्लीटली वही है। असल में हमें अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा खतरा है। दरख्वास्त गुजार के वकील एडवोकेट शहबाज जसकानी और सोहेल कनासरो ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस दोनों को तहफ़्फ़ुज़ दे। दरख्वास्त में SSP ईस्ट, SHO कैंट को फरीक बनाया गया। कैमरामैन साजिद के साथ मुमताज़ जमाली, सिटी 21। बरतानिया में बादशाह चार्ल्स सोम की ताजपोशी। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर और कमिश्नर कराची का खराज तहसीन। कमिश्नर कराची कहते हैं दरख्त शहर कायद की अशद ज़रूरत है। शहरी अगर ताउन करे तो हर उस जगह दरख्त लगाएंगे जहां शहरी कहेंगे। आदियानास की रिपोर्ट देखिए। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी और कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की जानिब से खराज तहसीन पेश करने के लिए कॉमनवेल्थ कॉर्नर कायम कर दिया गया। सलमान फारसी पार्क लिफ्टन में कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया गया। पार्क में बरतानिया और बादशाह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार के तौर पर 56 दरख्त लगाए गए, जिसमें फलदार, फूलदार और ठंडी छांव मुहैया करने वाले दरख्त शामिल हैं। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का कहना है कि कराची के माहौल को शजरकारी की अशद जरूरत है। शहर में अब मुख्तलिफ जगह मिलने पर हम वहाँ अर्बन फॉरेस्ट कायम कर रहे हैं। शहर में अब तेजी से दरख्त लगाए जा रहे हैं। सलमान फारसी पार्क में जो खाली जगह है, इस साइड से लेके उस कॉर्नर तक हम इसको अर्बन फॉरेस्ट में कर देंगे तब्दील। और ये कराची के शहरियों का किंग चार्ल्स की आज जो कोरोनेशन है उस सिलसिले में उनको एक तोहफ़ा है। और ये तोहफ़ा हमने एनवायरनमेंट का क्यों रखा, इसलिए कि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान, कराची और ये पूरी दुनिया मुतासर है। कमिश्नर कराची का कहना है कि कराची में किसी मंसूबे की वजह से कटने वाले दरख्त बड़े होते हैं जो नजर आ रहे हैं। हम कराची वालों को दावत देते हैं कि आए दरख्त लगाने में हमारा साथ दें। जब दरख्त कहीं पे गलत या किसी प्रोजेक्ट के तहत काटे जाते हैं तो वो एक तनाव दरख्त होता है, वो नज़र आ रहा होता है और वो एक अपना एक जो उसका फ़ायदा है, साया है या जो फ्रूट है वगैरह, वो हमें दे रहा होता है तो हमें उसकी तकलीफ़ ज़्यादा होती है, हमें महसूस ज़्यादा होता है। हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ हमें स्पेस नज़र आती है, जहाँ जहाँ हम चाहें कि हम पौधे लगाएं, हमें पौधे लगाने चाहिए। कमिश्नर कराची ने बताया कि शहर में गुज़श्ता सालों से दरख्त लगाए जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए दरख्त बहुत ज़रूरी हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदियानास, सिटी 21। एक हफ्ते में रुपए की कदर बेहतर हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 59 पैसे तक गिर गया। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता हो चुका है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। रुपया तगड़ा हो गया। डॉलर करेंसी मार्केट की जारी हफ्तावार रिपोर्ट में कहा गया है कि एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 25 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर 283 रुपये 84 पैसे से कम होकर 283 रुपये 59 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक के ज़खायर 60 लाख डॉलर कमी से 4 अरब 45 करोड़ 70 लाख डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 2.5 करोड़ डॉलर इजाफे से 5 अरब 58 करोड़ 60 लाख डॉलर हो गए। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता होकर 287 रुपए का हो गया। यूरो 1 रुपए कमी से 316 रुपए, जबकि बरतानी पाउंड 50 पैसे इजाफे से 360 रुपए 50 पैसे का हो गया। एक हफ्ते में मारती धरम 1 रुपए सस्ता होकर 78 रुपए 20 पैसे और सऊदी रियाल 40 पैसे कमी से 76 रुपए 20 पैसे पर आ गया। माहिरीन का कहना है कि यूएई ने 1 अरब डॉलर और सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर देने की तस्दीक की है। इससे रुपए की कदर में बेहतरी का इम्कान है। अशरफ खान, सिटी 21।
क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने बाबर आजम को वर्ल्ड कप में कप्तान बरकरार रखने के फैसले का खैर मकदम कर दिया। कहते हैं बाबर को कप्तान बनाने का फैसला बेहतरीन है। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाना चाहिए। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। वांगे गोट सरजानी टाउन में शाहिद अफरीदी फाउंडेशन और ग्रीन क्रिसेंट के इश्तराक से स्कूल के तौसी मंसूबे का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा कि बाबर आजम को वर्ल्ड कप में कप्तान बरकरार रखने का फैसला खुश आइंद है। पाकिस्तानी टीम बड़े इवेंट के लिए तैयार है। ना ये पाकिस्तान अकेले कोई बंदा चला सकता है, ये मुल्क हम सब ने मिल के बनाया, हम सब की कुर्बानियों से बना और इंशाल्लाह हम सब मिल के ही इस मुल्क की तरक्की और कामयाबी में अपना रोल लाजमी अदा करेंगे। शाहिद अफरीदी बोले, कोशिश है कि गरीब आवाम को तालीम, सेहत और खेलों की सहूलियात फराहम करें। मैं क्या कर सकता हूँ इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के बच्चों के लिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 2.5 से 3 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूल से बाहर है। तालीम, तालीम के बारे में ये कहा जाता है कि इसके बगैर किसी भी मुल्क की तरक्की और कामयाबी पॉसिबल ही नहीं है। तो एजुकेशन का इतना इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी मुल्क की सक्सेस के लिए। शाहिद अफरीदी ने इंतजामिया के हमरा स्कूल का दौरा किया। तालिब इल्मों से मुलाकात के दौरान उनकी हौसला अफजाई की। कैमरामैन शकील खान के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21 न्यूज़, कराची। अपने टीचर की बात माननी है आप लोगों ने, ठीक है ना? जिस तरह ये आपको क्या, इस तरह आप लोगों ने करना है। एहफाजुर रहमान अवार्ड्स बराए जुरत, इजहार और आज़ादी सहाफ़त की तकरीब आर्ट्स काउंसिल में हुई है। मज़ीद तफसीलात हमना निसार से जान लेते हैं। जी हमना, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची आर्ट काउंसिल में मौजूद हूँ, जहाँ पे हिफाजुर रहमान अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया गया था, जहाँ सीनियर सहाफ़ी हुसैन नकी के साथ साथ जो उर्दू यूनिवर्सिटी के पास आउट तलबा 2023 के जो उन्होंने हुस्न कारकर्दगी दिखाई थी, उनको भी अवार्ड से नवाजा गया। हमारे साथ फर्स्ट पोजीशन के होल्डर मौजूद हैं, किंजा और सुल्ताना, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कितनी खुश हैं और क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से आप? जी मैं बेहद खुश हूँ। मुझे वैसे ये था कि मैं कोई ना कोई पोजीशन तो ले सकती हूँ, लेकिन इस मुकाम पे आना अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं या उनका सपोर्ट, क्योंकि मुझे बहुत सारी डिमोटिवेशन का भी सामना करना पड़ रहा था, लेकिन फिर उसके बाद हमारे टीचर्स जिन्होंने सपोर्ट किया, जिनकी वजह से मुझे आज ये दिन देखने को मिल रहा है, तो मैं बेहद खुश हूँ आज। इसके अलावा हमारे साथ शोबे के बहुत ही सीनियर उस्ताद मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा, आपके बहुत सारे तालिब इल्म पास आउट हुए हैं, कितनी खुशी हो रही है जो तलबा यहाँ से अच्छी कारकर्दगी के लिए अवार्ड जिन्होंने लिया है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे तो ये सालाना तकरीब होती है और हर साल तालिब इल्म पास होते हैं, जाते हैं, करियर बनाते हैं, लेकिन इस साल की ख़ास बात ये है कि हमारे डिपार्टमेंट की पहली पोजीशन के लिए एहफाजुर रहमान अवार्ड भी उसका ऐलान हुआ है। एहफाजुर रहमान की शख्सियत सहाफ़ियों के लिए कोई छुपी हुई शख्सियत नहीं है, वो एक अनथक मेहनत करने वाले सहाफ़ी थे। तो मेरा ख़्याल है कि एहफाजुर रहमान का जो मैसेज है, मेहनत का, लगन का, फेयरनेस का, बैलेंस्ड का और जुस्तजू का, वो हमारे तालिब इल्मों में भी पहुँचेगा और मुस्तकबिल के सहाफ़ी जो हैं वो अपनी सहाफ़त को ठीक तरह से और एहफाजुर रहमान की रोशनी में और उनकी लिखी हुई किताब जो है सबसे बड़ी जंग, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी वाक़यात का ज़िक्र किया है। तो तालिब इल्मों के लिए ये एक मैसेज री इन्फोर्समेंट है। यकीनी तौर पे नए आने वाले सहाफ़ियों को हिफाजुर रहमान अवार्ड से नवाजना ये बहुत बड़ा उनके लिए एक हौसला अफजाई है, और यकीनी तौर पे यहाँ जितने भी तालिब इल्म हैं जिन्होंने सहाफ़त में अपना कदम रखा है, वो बिल्कुल इस अवार्ड सेरेमनी से हौसला अफजाई उनकी होगी। जी मज़ीद तफसीलात इस ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे और ख़बर शामिल करेंगे। गुलशन इकबाल के रिहायशी फैसल शफ़ी ने लंदन मैराथन मुकम्मल करके मास्टर एज ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। तफसीलात नमरा रियासत की रिपोर्ट में है। 2019 में फैसल शफी का मैराथन का शुरू होने वाला सफर 5 साल के अरसे में बड़ी कामयाबी बन गया। लंदन मैराथन विनर ने न सिर्फ तुर्की, बर्लिन, दुबई और लंदन में मैराथन के मुख्तलिफ मुकाबलों में फतह हासिल की, बल्कि रवां बरस लंदन मैराथन में 3 घंटे 5 मिनट में फिनिश लाइन क्रॉस की। लंदन मैराथन में पार्टिसिपेशन का चांस मिला, तो लंदन में मैंने माशाल्लाह इस दफ़ा जो है वो 3 घंटे 5 मिनट में उसको ख़त्म करके और बॉस्टन के लिए एक और दफ़ा क्वालिफाई किया। फैसल शफी के मुताबिक पाकिस्तान में खेल की सरगर्मियों का रुझान कम है, लेकिन इस बात की खुशी है कि बर्लिन में होने वाली अगली मैराथन में 62 पाकिस्तानी हिस्सा ले रहे हैं, जो दीगर ममालिक की निस्बत सबसे ज्यादा तादाद है। मेरा एक तरह से एक ड्रीम था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को कोई रिप्रेजेंट करे, क्योंकि अभी जैसे लंदन में हम 4-5 लोग गए थे,
पिछले साल बर्लिन में 3 लोग थे, इस साल बर्लिन में 62 लोग जा रहे हैं। तो बर्लिन मैराथन में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन है और अगेन वो हमें देख के लोग इंस्पायर होते हैं। फैसल शफी के मुताबिक मैराथन में हिस्सा लेने वालों की रोजमर्रा की रूटीन सख्त हो जाती है, जिसके लिए फैमिली का साथ इंतहाई जरूरी है। सब्ज परचम के ज़ेरे साए कामयाबी हासिल करने वाले फैसल शफी मजीद मुकाबले जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के ख्वाहिशमंद हैं। कैमरामैन शेर फराज के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।